بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس آئی ہوپ یو ول بی فائن اسکول بیس اسیسمنٹ 2025 اینڈ آف دا ایئر اسیسمنٹ سبجیکٹ کمپیوٹر سائنس گریڈ 6 کا آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ میرے ساتھ ساتھ پیپر اے کو ریوائز کرنا ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ آپ کو ایک ایک ورڈ کا ٹرانسلیٹ کر کے ایک ایک فکرے کا آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے بتاؤں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ کیا کوشچن پوچھا جا رہا ہے، اور آپ کو جب ٹرانسلیشن آپ کو ہو جائے گی کوشچن کی تو آپ کو آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ تو میری کوشش یہی ہوگی کہ میں آپ کو آسان سے آسان وے کی طرف لے کے جاؤں تاکہ آپ کو پورا پیپر جب آپ کے سامنے آئے تو آپ کنفیوز نہ ہوں اور آپ کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ آپ نے پیپر اے ہے نا جو وہ آپ نے اچھے سے پریپیئر کر لینا ہے۔ تو پیپر سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا کوشچن ہے این ایپلیکیشن آف آئی سی ٹی از فار آئی سی ٹی کی اپلیکیشن ڈیش کے متعلق ہے تو اس کا آنسر ہوگا آپشن بی۔ نیکسٹ کوشچن ہے سی پی یو اسٹینڈ فار سی پی یو کا کیا مطلب ہے تو یہ اس کا ہے جی آپشن بی سینٹرل پروسیسنگ یونٹ۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے دا کلیکشن آف را فیکٹس آف فگر از نون ایز حقائق اور اعداد شمار کے مجموعے کو کہا جاتا ہے تو اس کا آنسر آپشن بی۔ نیکسٹ کوشچن ہے سلیکٹ دا جنریشن دیٹ انکلوڈڈ دا مائکرو پروسیسر، ایسی جنریشن منتخب کریں جس میں مائکرو پروسیسر شامل تھے تو اس کا آنسر ہے آپشن ڈی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے دا ورکنگ ونڈو آن دا ڈیسک ٹاپ از ریفر ٹو ایز، ڈیسک ٹاپ پر ورکنگ ونڈو کو کہا جاتا ہے تو اس کا آنسر ہے آپشن سی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے ایپل کمپیوٹر یوز دا آپریٹنگ سسٹم، ایپل کمپیوٹر آپریٹنگ سسٹم میں استعمال کرتے ہو تو اس کا آنسر ہے آپشن بی۔ نیکسٹ کوشچن ہے on the desktop the taskbar is usually located at the side، ڈیسک ٹاپ پر ٹاسک بار عام طور پر واقع ہوتا ہے تو اس کا آپشن سی۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے آئیڈینٹیفائی دا لنک دیٹ دا یوز از ٹو ایزیلی ایکسیس فائل فولڈر ان ونڈو تو اس کا آنسر ہے آپشن اے۔ نیکسٹ کوشچن ہے وی کین ریڈیوس دا رسک آف فیلئر آف آ سولوشن، ہم سولوشن کی ناکامی کو خطرے کو کم کر سکتے ہو تو اس کا آنسر ہے آپشن بی۔ نیکسٹ کوشچن ہے ریکنسٹرکشن از آلسو نون، ریکنسٹرکشن کو کہا جاتا ہے تو اس کا آنسر ہے آپشن سی۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے دا پروگرام از، پروگرام ہے تو اس کا آنسر ہے آپشن بی۔ نیکسٹ کوشچن ہے دا فرسٹ ڈیجیٹل کمپیوٹر بیبی واز کنسٹرکٹیڈ ان، پہلا ڈیجیٹل کمپیوٹر بیبی متعارف کروایا گیا تو اس کا آنسر ہے آپشن سی۔ نیکسٹ کوشچن ہے دا فرسٹ اسٹیپ فار ڈیولپنگ آ پروگرام از، پروگرام تیار کرنے کا پہلا مرحلہ ہے تو اس کا آنسر ہے آپشن بی۔ نیکسٹ کوشچن ہے 14 آف finite sequence of instruction to solve a specific task is called، آنسر ہے آپشن بی۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے دا کریکٹر ان اسکیچ از کالڈ، کریکٹر اسکیچ میں کریکٹر کو کہا جاتا ہے تو اس کا آنسر ہے آپشن سی۔ نیکسٹ کوشچن ہے if the output of the program does not match with the desired result then the error will be، آنسر ہے آپشن سی۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن a variable used to store information is called تو اس کا آنسر ہے آپشن بی۔ نیکسٹ کوشچن ہے the first step of debugging is a program is تو اس کا آنسر ہوگا آپشن سی۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے blog used to get information about other sprite تو اس کا آنسر ہوگا آپشن اے۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے کوشچن نمبر 20 the process of fixing errors in programming is تو اس کا آنسر ہوگا آپشن اے debugging۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے کمیونٹی ممبر از نون ایز، کمیونٹی ممبر کو کہا جاتا ہے تو اس کا آنسر ہے آپشن سی۔ اس کے بعد نیکسٹ ہے پائرسی از، پائرسی ہے تو اس کا آنسر ہے آپشن سی۔ نیکسٹ کوشچن ہے رسپانسبل ڈیجیٹل سٹیزن شپس مین تو اس کا آنسر ہے آپشن بی۔ نیکسٹ کوشچن نمبر 24 ہے a person who develop the skills by using the internet is called، انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے مہارت حاصل کرنے والا شخص کہلاتا ہے تو اس کا آنسر ہے آپشن بی ڈیجیٹل سٹیزن۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے an entrepreneur is one who، انٹرپرینیور ہے تو اس کا آنسر ہوگا آپشن بی starts his own business۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے آن لائن پیمنٹ نیٹ ورک پے پال کریٹڈ بائی، اٹس آنسر از آپشن سی۔ نیکسٹ کوشچن از دا فائنل اسٹیپ آف انٹرپرینیور پروسیس از تو اس کا آنسر ہے آپشن بی ہارویسٹنگ۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے انٹرپرینیور پروسیس اینڈز آن اسٹیپ، کاروباری عمل جس مرحلے پر ختم ہوتا ہے تو اس کا آنسر آپشن بی ہے۔ نیکسٹ ہے پوڈیو موبائل اپلیکیشن از یوز ٹو تو اس کا آنسر ہے آپشن سی۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے چیلنج فیسڈ بائی ڈیجیٹل انٹرپرینیورشپ از تو اس کا آنسر ہوگا آپشن ڈی۔ اس کے بعد نیکسٹ کوشچن ہے دا فورتھ اسٹیپ ان دا انٹرپرینیورشپ پروسیس تو اس کا آنسر ہوگا آپشن سی۔ اس کے بعد لاسٹ والا ایم سی کیوز ہے
सेल्फ प्लेजरिज्म इज, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। MCQs तो कवर हो गए हमारे, तो इंशाल्लाह ताला आपको साथ साथ रिवाइज भी हो गए होंगे। कोशिश मैंने अपनी तरफ से पूरी की है कि आपको साथ साथ रिवाइज हो जाएं। तो अब MCQs शेयर करने के बाद अब बारी आती है सब्जेक्टिव पार्ट की। तो सब्जेक्टिव पार्ट में क्वेश्चन नंबर 33 का फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है, राइट द नेम ऑफ एनी 5 ICT डिवाइस। कोई सी 5 ICT डिवाइस के नाम लिखने हैं। नेक्स्ट है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन अ बूटिंग, आपने बूटिंग पर मुख्तसर नोट लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 का फर्स्ट पार्ट का क्वेश्चन है, डिफाइन रिपीटेशन फ्लो इन द लॉगरिथम। लॉगरिथम में तकरार के भाव की तारीफ करें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एन लॉगरिथम टू पॉलिश अ शू, जूता पॉलिश करने के लिए लॉगरिथम लिखें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन एंड नॉन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन है। उसके बाद 35 का क्वेश्चन 1 है, राइट एन अलॉगरिथम टू फाइंड द सम ऑफ एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबरों का मजमुआ और औसत मालूम करने के लिए लॉगरिथम लिखें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी 2 बेनिफिट्स ऑफ डिबिगिंग, डिबिगिंग की कोई से 2 फ़ायदे की वजाहत करें। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू वी नीड डिबिगिंग, हमें डिबिगिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। नेक्स्ट है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस, ई और ट्रेडिशनल बिजनेस के दरमियान आपने फ़र्क लिखना है। नेक्स्ट है, लिस्ट द नेम ऑफ 4 ऑपरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के 4 ऑप्शंस के नाम लिखें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 का फर्स्ट है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय अ डिजिटल सिटीजन, डिजिटल शहरी से क्या मुराद है। उसके बाद नेक्स्ट है, डिफाइन प्लेजरिज्म, राइट इट्स 2 टाइप्स। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि प्लेजरिज्म की तारीफ करें और इसकी 2 एग्जाम लिखें। इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स का तो पेपर हमारा क्लियर हो गया। अब आपके साथ शेयर करेंगे उर्दू का पेपर। तो सबसे पहले MCQs आपसे के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले MCQs है, ICT की एप्लीकेशन डैश के मुतल्लिक है, तो इसका आंसर होगा बी। उसके बाद दूसरा सवाल है, CPU डैश का मुखफ़्फ़ है, तो इसका मतलब आंसर होगा बी ऑप्शन। उसके बाद अगला सवाल है, हक़ाइक़ और अदाद शुमार के मजमूए को कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा बी। उसके बाद अगला है, ऐसी जनरेशन मुंतखब करें जिसमें माइक्रो प्रोसेस शामिल है, तो इसका आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, डेस्कटॉप पर वर्किंग विंडो को कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। एप्पल कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, डेस्कटॉप पर टास्क बार आमतौर पर वाक़या होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी नीचे। नेक्स्ट है, विंडोज़ में फाइल फोल्डर तक आसानी से रसाई के लिए इस्तेमाल होने वाले लिंक की निशानदेही करें, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए शॉर्टकट। उसके बाद अगला सवाल है, हम सोल्यूशन की नाकामी के खतरे को कम कर सकते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद है, डीकंस्ट्रक्शन को कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम है, तो इसका आंसर होगा डैश हदायत का मजमुआ ऑप्शन बी। अगला सवाल है, पहला डिजिटल कंप्यूटर बेबी मुतारफ़ करवाया गया, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोग्राम तैयार करने का पहला मरहला है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी मसले की वजाहत। महसूस काम को हल करने के लिए हदायत की महदूद तरतीब को कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अलॉगरिथम। स्क्रैच में करैक्टर को कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, अगर प्रोग्राम की आउटपुट मतलूबा रिजल्ट के मुताबिक ना हो तो एरर होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, वेरिएबल जिस मालूमात को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल होता है कहलाती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। उसके बाद है, प्रोग्राम को डिबगिंग करने का पहला मरहला है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मसले की शनाख्त करना। उसके बाद अगला है, दीगर स्प्राइट के मुतल्लिक मालूमात के लिए ब्लॉक इस्तेमाल होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, प्रोग्रामिंग में गलतियां दुरुस्त करने का अमल है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कम्युनिटी मेंबर को कहा जाता है, तो इसका आंसर होगा बी शहरी। नेक्स्ट है, पायरेसी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। उसके बाद नेक्स्ट MCQs है, जिम्मेदार डिजिटल शहरियत का मतलब है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कानूनी तौर पर ताउन करना। उसके बाद है, इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए महारत हासिल करने वाला शख्स कहलाता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी डिजिटल शहरी। नेक्स्ट, इंटरप्रीन्योर है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी जो अपना कारोबार शुरू करता है। उसके बाद नेक्स्ट है, पेपाल ऑनलाइन पेमेंट नेटवर्क बनाया है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, कारोबारी अमल का आखिरी मरहला है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। कारोबारी अमल में जिस मरहले पर ख़त्म होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, PDO मोबाइल एप्लीकेशन डैश के लिए इस्तेमाल होती है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बिजनेस बढ़ाने के लिए। डिजिटल इंटरप्रीन्योरशिप को दरपेश चैलेंज है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी नई टेक्नोलॉजी को अपनाना। नेक्स्ट,
इंटरप्रेन्योरशिप के अमल का चौथा मरहला है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सेल्फ प्लेजरिज्म है तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अपना शाया शुदा काम दोबारा इस्तेमाल करना। एमसीक्यूज हमारे कवर हो गए हैं, उम्मीद है कि आपको अच्छे से ये याद हो चुके होंगे। उसके बाद आपके साथ हिस्सा 2 में चाहिए सवाल आता है वो शेयर करती हूँ। सवाल नंबर 33 में सबसे पहला सवाल है कोई से 5 आईसीटी डिवाइस के नाम लिखने हैं आपने। दूसरा सवाल है वोटिंग पर मुख्तसर नोट लिखें। सवाल नंबर 34 का पहला सवाल है लॉगरिथम में तकरार के बहाव की अपनी तारीफ करनी है। दूसरा सवाल है जूता पॉलिश करने के लिए लॉगरिथम लिखें। उसके बाद तीसरा सवाल है महसूस हदायत और गैर महसूस हदायत में आपने फ़र्क बताना है। सवाल नंबर 35 का पहला सवाल है तीन नंबरों का मजमुआ और औसत मालूम करने के लिए लॉगरिथम लिखने हैं। उसके बाद दूसरा सवाल है डिबिगिंग के कोई से 2 फ़ायदे की वजाहत करें। सवाल नंबर 36 का पहला सवाल है हमें डिबिगिंग की ज़रूरत क्यों होती है। ई बिज़नेस और ट्रेडिशनल बिजनेस के दरमियान फ़र्क करें, इसका आपने आंसर लिखना है। उसके बाद है कंप्यूटर के 4 ऑप्शंस के नाम लिखें। सवाल नंबर 37 का पहला सवाल है डिजिटल शहरी से क्या मुराद है। सवाल नंबर 2 है प्लेजरिज्म की तारीफ करें और 2 इकसाम लिखें। और सवाल नंबर 3 है एक अच्छे डिजिटल शहरी की कोई सी 5 खसूसियात लिखें। क्वेश्चन आपके सामने आ गए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है कि इनमें से ऑलमोस्ट आपको ये क्वेश्चन के आंसर आते होंगे। मेरी कोशिश यही है कि आपके लिए आसान से आसान क्वेश्चन के आंसर आपके साथ शेयर करूं। सबसे पहला जो सवाल था कि कोई से 5 आईसीटी डिवाइस के नाम लिखे, तो उसका आंसर यहाँ से आपने नोट करना है। जो आपके सामने यहाँ नंबरिंग दी गई है, इन्हीं नंबरिंग को आप उर्दू में भी ऐसे पुट करके लिख सकते हैं। जो प्रिंटर है तो प्रिंटर को प्रिंटर ही कहा जाएगा। इसी तरह आपने इनको उर्दू में कंप्यूटर को कंप्यूटर ही कहा जाता है, लैपटॉप को लैपटॉप ही कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बूटिंग। बूटिंग पर आपने मुख्तसर नोट लिखना है, तो उसका आंसर आप साथ शेयर करती हूँ। आपने आंसर लगाना है, यहाँ से यहाँ तक आपने लिख लेना है। ओके, यहाँ से यहाँ तक आपने लिखने के बाद उसके बाद अगला सवाल है डिफाइन रेपिटेशन फ्लो इन द लॉगरिदम। लॉगरिदम में तकरार के बहाव की तारीफ करें, तो इसका आंसर यहाँ आपके सामने नज़र आ रहा है, आपने यहाँ से नोट डाउन कर लेना है। उसके बाद अगला सवाल है राइट साइड पे आपके लिए ये आंसर जो नज़र आ रहा है उर्दू मीडियम में स्टूडेंट्स के लिए, और यहाँ लेफ़्ट साइड पे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के आंसर होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट एन अलॉगरिदम टू पॉलिश अ शू। जूता पॉलिश करने के लिए आपने अलॉगरिदम लिखना है। 4 नंबर का ये सवाल है, तो इसका आंसर आपके सामने है। मरहला नंबर 1 है शुरू करें। मरहला नंबर 2 है जूते वाली पॉलिश खोलें। फिर नेक्स्ट है ब्रश पर जूतों वाली पॉलिश लगाएं। एक जूता पॉलिश करें। फिर नेक्स्ट ब्रश पर जूते की पॉलिश लगाएं। फिर दूसरा जूते को पॉलिश लगाएं और सेकंड लास्ट है पॉलिश की टिबिया बंद करें। और उसके बाद लास्ट वाला है स्टॉप कर दें, यानी ख़त्म कर दें। उसके बाद अगला सवाल है डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन एंड नॉन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। ये ज़रूरी और गैर ज़रूरी जो हदायत है ना, यहाँ से यहाँ तक उसका आंसर होगा। उस सवाल का आपने नोट कर लेना है। बाज़ औक़ात हमारे पास किसी मसले को हल करने के लिए वजाहत वाज़ेह हदायत होती है, उन हदायत को स्पेसिफिक हदायत कहा जाता है। जबकि बाज़ औक़ात हमारे पास लॉगरिदम या हदायत वाज़ेह नहीं होती और इन्हें तलाश करना पड़ता है, ऐसी हदायत को नॉन स्पेसिफिक हदायत यहाँ गैर महसूस कहलाती हैं। उसके बाद अगला सवाल है राइट एन अलॉगरिदम टू फाइंड द सम एंड एवरेज ऑफ 3 नंबर्स। 3 नंबरों का मजमू और औसत मालूम करने के लिए आपने लॉगरिदम लिखना है, तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक आपने नोट कर लेना है। पहला मरहला है शुरू करें। 3 नंबर ABC दर्ज करें, यहाँ से लेके फिर लास्ट वाला यहाँ तक आपने लगा लेना है कि मरहला नंबर 7 सातम, यहाँ तक आपने लिख लेना है। उसके बाद है डिबिगिंग की कोई से 2 फ़ायदे की वजाहत करें, तो उसका आंसर आपने नोट डाउन कर लेना है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद ये आपने क्लियरली नज़र आ रहा होगा। और उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है व्हाई डू वी नीड डिबिगिंग, हमें डिबिगिंग की ज़रूरत क्यों होती है, तो इसका आंसर भी आपके सामने ये 4 पॉइंट्स हैं आपको दिए गए हैं कि क्यों हमें ज़रूरत होती है। उसके बाद नेक्स्ट है ई बिज़नेस और ट्रेडिशनल बिज़नेस के दरमियान आपने डिफरेंस आपने बताना है। ई बिज़नेस क्या होता है और ट्रेडिशनल बिज़नेस क्या होता है, तो इसका आंसर आपने यहाँ से नोट डाउन कर लेना है, यहाँ से यहाँ तक। उसका बिज़नेस ई बिज़नेस का पॉइंट है और उसके बाद दूसरा पॉइंट है ट्रेडिशनल बिज़नेस। उसके बाद नेक्स्ट है कंप्यूटर के 4 ऑप्शंस के नाम आपने लिखने हैं। ये नाम आपके सामने लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिजिटल शहरी से क्या मुराद है, तो आपने इसका आंसर लिखना है। यहाँ आपके सामने लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा है, आपने यहाँ से यहाँ तक नोट कर लेना है। उसके बाद प्लेजरिज्म की तारीफ़ करें और उसके 2 इकसाम लिखें।
تو اس کا آنسر آپ نے یہاں سے یہاں تک نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو صحیح کلیئر نظر آ رہا ہوگا۔ یہ میں آپ کو زوم کر کے دکھا دیتی ہوں، آپ اس کا آنسر کو نوٹ ڈاؤن کر لیں۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے کہ رائٹ اینی 5 کریکٹرسٹک آف اے گڈ ڈیجیٹل سٹیزن۔ آپ نے اچھے جو ڈیجیٹل شہری ہے اس کی کوئی سی 5 خصوصیات بیان کرنی ہے۔ تو وہ کون سی 5 خصوصیت ہے اس کا آنسر بھی آپ کے سامنے میں کر دیتی ہوں، آپ نے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لینا ہے۔ میں کوشش کروں گی کہ وہ آپ کو صحیح کلیئر نظر آئے۔ تو اس کا آنسر ہے، یہاں سے آپ نے نوٹ کر لینا ہے۔ رائٹ سائڈ پہ آپ اردو میڈیم والے بچے نوٹ کریں گے اور لیفٹ سائڈ پہ انگلش والے۔ تو یہاں سے جہاں سے قابل قبول ہے، پوائنٹ نمبر 1 سے ہی سٹارٹ ہو رہا ہے، ٹیکنالوجی کے اچھے اور برے استعمال کا پتہ ہو، آن لائن ہوتے ہو، محفوظ اور ذمہ دار ہونا ہو، تعلیمی اور ثقافتی سرگرمیوں ٹیکنالوجی کا استعمال، وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوتا ہے، وہ دوسروں کے حقوق کا احترام کرتا ہے، تقریر کی آزادی اور دوسروں کی رازداری کا احترام کرتا ہے، اچھا ڈیجیٹل شہری آن لائن مثبت اور مفید بات چیت کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، ڈیجیٹل شہریت کی اقتدار کو فروغ دیتا ہے، اور اچھا ڈیجیٹل شہری مہربان ہوتا ہے۔ یہاں تک آنسر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اسی کے ساتھ ہمارا جو پیپر ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو گیا۔ امید ہے کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس دعا کے ساتھ آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں دے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے۔ مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔